आपके घर के अगल बगल हो सकता है कि 3-4 किराने की दुकान हो, एक बहुत चलती हो एक ना चलती हो, जबकि दोनों जगह सेम टाइप का सामान मिलता होगा। राइट। आप ध्यान दोगे तो रीजन ये हो सकता है कि बेटर वो किस तरह से है, प्रॉब्ली सर्विस में बेटर हो, प्रॉब्ली व्यवहार में बेटर हो। जैसे ही आता है कोई तो पूछता है मैम बड़े दिनों बाद आया, कैसे हो, एक हफ्ते से देखा नहीं। So it's like personal connect because you are giving him an extra personal attention and personalized service. I would tell you 95% of most businesses fail, new businesses. Okay. ठीक है, अगर वो कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, एंड 95 में से 50% चांसेस होते हैं कि वो इसलिए फेल होता है क्योंकि को-फाउंडर्स में आपस में केमिस्ट्री नहीं थी, गलत मैच हो गया। तो लुक फॉर अ मैच विच इज परफेक्टली इन सिंक विद यू। कोविड के टाइम पे वैक्सीन जिसने भी निकाली उसने बहुत पैसा बनाया, या उससे रिलेटेड जिसने बिजनेस किया, क्योंकि इट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। सो टुडे आल्सो देयर आर लॉट ऑफ न्यू बिजनेसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज वेयर दिस डेफिनेशन ऑफ अ स्टार्टअप कैन बी अप्लाइड। अगर ये डेफिनेशन में आप खरे उतरते हैं तो आप एक फंडेबल या वीसी फंडेबल या एंजल इन्वेस्टर के लायक बिजनेस हैं। Welcome to the Raj Smriti Show. Today we'll talk all about business, entrepreneurship and startups. We have with us Mr. Sachin Sahni, who's a serial entrepreneur, founder, Health Zone, Glamour Zone and Keros Superfood. Welcome to the show, sir. It's an honor having you, and to begin with, we'd like to know what is an entrepreneur and how do you label yourself as a serial entrepreneur? Entrepreneur मतलब मुझे बड़ी देसी वाली लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल देसी लैंग्वेज में ही समझाइए है। जो एक बिजनेस कर रहा है टू मेक अ लिविंग, आई थिंक ब्रॉडली दैट इज एन एंटरप्रेन्योर। बट अगर उसको थोड़ा सा ग्लैमराइज जो आजकल का उसमें तड़का लगा दें तो somebody who's into a creation of wealth for himself and the society and the stakeholders like the employees and the investors and the वेंडर्स। तो ये थोड़ा सा तड़के के साथ में उसकी वो हो गई। अदरवाइज मैंने सिंपल वाला आपको बता दिया। कमिंग टू सीरियल एंटरप्रेन्योर, आई थिंक somebody who's been building one business, then second, then third. That's like any serial which has various episodes. So I call myself serial entrepreneur because this is my third business in which I am currently in. Okay. That is Keros Superfoods. So I started from Health Zone, where I was in the business of helping people lose weight, get fitter, give them diet counseling, exercises, etc. Good 25 years back. Then the chain of salons called Glamour Zone, and then this superfoods which are certified diabetic friendly and healthy for all. The snacks, drinks, supplements which are helping diabetics and having a joyful eating experience. Right. So एक के बाद एक दूसरा तीसरा करना इसलिए ये serial entrepreneurship हो गई. So what keeps you going, or what would keep any serial entrepreneur going? Like if you established Health Zone, it was doing well. You established Glamour Zone, it was doing very well. What was the need of launching Keros? लालच. मोर दिल मांगे मोर कहते हैं ना। राइट। सो मोर मतलब क्या, मोर एक चैलेंज खत्म हो जाता है आफ्टर सम टाइम। इट्स व्हेन यू सेट अप अ बिजनेस एंड इट इज ऑन ऑटो पायलट मोड, इट्स रनिंग ऑन इट्स ओन, यू हैव एम्पल टाइम। राइट। तो या तो आप एकदम मजे करो, बिकॉज 2-3 घंटे के काम के बाद मेरे को दिन में समझ नहीं आता था क्या करूं। सो देन यू गो ऑन टू द नेक्स्ट बिजनेस. इट वाज वेरी स्टेबल, इट वाज ऑलरेडी working on its own. You had a team running it in an efficient way. So because most of the responsibilities were delegated, so you want to do something more, utilize your time better, and also to be able to earn more. Right. So भाई आज 100 हैं, कल 200 हो, 1000 हो, क्यों ना हो. Right. So that's a key learning, that as an entrepreneur you should not stop. Also it gives you a kick that you're building one business, you're employing 100 people, then 150, 200. There are so many people who are making a living because of what you have built. Right. So
देश के लिए That's अच्छा a है कि beautiful कुछ feeling कि आपके वजह से बहुतों के घर चल रहे हैं. मेरी वजह से नहीं कहूँगा मैं, I mean, उस बिजनेस की kind वजह of, से हाँ. जो मैंने फाउंड किया. बट अल्टीमेटली तो जब मैंने बोला कि मैं तो दिन में 2 घंटे देता था, रियल ब्लड एंड स्वेट तो बेचारे एम्प्लॉयज़ का था. Right. मैं तो पैसा एक लेवल तक ला के छोड़ दिया था उसको. एंड माई इंटरवेंशन वॉज ओनली एट द स्ट्रेटेजिक लेवल कि भाई नेक्स्ट क्या दिशा. सो दैट्स वाई. Okay. So yeah, it gives a lot of kick. Lot you of know, kick. and of course kick, पैसा भी जब ज़्यादा आता है तो kick होती है ना. I'm sure. So there's also a myth prevailing that if you belong to a tier 2 or a tier 3 city, say Lucknow or another city, is it advisable to start a business from a small city, or you should, plunge into the metro cities and start because you have a wider audience and a huge pool of people there to sell your products? Look, अगर मैं सच बोलूँ तो yes, the chances of success are always better in a bigger place. Okay. Especially if it's an innovative, new to the world kind of a business. But you started all your business from Lucknow. Because I had certain advantages and a certain comfort also. Okay. Somebody who's starting afresh and has a base already in, let's say, a Bangalore or a Delhi, wherever, he should think of that. I had a solid entrenched base in Lucknow. Okay. And I did not want to leave this comfort. And then I thought, why only just for the sake of starting a new business, I should begin with Delhi. I have a lot of advantages here. I have my setup here. I have people known to me. Why shouldn't I start? मैं यहाँ से क्यों ना स्टार्ट करूँ? मैं यहाँ से करूँगा तो मेरे लिए बहुत आसान है. टीम बिल्ड करना, फैक्ट्री लगाना, उसको ऑपरेट कर पाने की क्षमता, उस पर काम करा पाने की क्षमता जो चाहिए होते हैं लोग. टीम के अलावा भी तो वेंडर्स चाहिए होते हैं आपको. आपकी एड एजेंसी हो सकती हैं, आपके सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, इकोसिस्टम जो एक बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होता है, वो आपको मालूम है कि कुछ खोजना नहीं है. दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई कहीं जाते तो हम सब नए बंदों को खोज रहे होते हैं कि यार एक टिकट भी बुक कराना हो तो मुझे नहीं पता होगा. यहाँ पर तो थिंग्स ऑटोमोट ना, मेरा जो हेल्प है, पर्सन हु हेल्प मी ऑर्गेनाइज माई स्मॉल थिंग्स, मैंने उसको बोलना है यार मेरी कल फ्लाइट बुक कर दे भाई, कल के लिए मुझे वहाँ जाना है. या जो हमारे कंसल्टेंट आ रहे हैं या बाहर से बायर आ रहा है, तो उसको मुझे कुछ करना नहीं है ना. ही नोज मी, आई नो हिम. 1 मिनट में हो जाएगा. नंबर 1. नंबर 2, एक छोटे शहर में स्टार्ट करने के, स्पेशली इफ इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस विच वी आर इन अ वे, ज़मीन सस्ती कंपेयर टू अ बिगर टाउन, लेबर सस्ती, ठीक है कुछ चीज़ें महंगी मीन्स मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर मी वर रेडली अवेलेबल. दूसरा वी आर इन फूड बिजनेस, एंड उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो यूपी एग्रेरियन इकोनॉमी है. जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रेडली अवेलेबल है यहाँ पे. तो बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मेरे लिए बहुत एडवांटेजेस था लखनऊ से स्टार्ट करना. दूसरा, लखनऊ इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड टेस्ट मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स विच आर इन दी मास प्रीमियम सेगमेंट. मतलब बहुत प्रीमियम है तो फिर आपको फिर साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली जैसी जगह पे लॉन्च करना होगा. बट इफ इट इज अ मास प्रीमियम प्रोडक्ट लाइक आर्ट्स, लखनऊ इज अ गुड टेस्ट मार्केट. आपको पायलट तो करना है ना, आप पूरी इंडिया में एक साथ तो लॉन्च नहीं कर सकते. सो फॉर दिस रीजन वी थॉट लखनऊ इज अ गुड प्लेस टू बिगिन विद. ओके, सो business can begin anywhere. It could be a small village, it could be a B town, it could be a metro. It depends on your own capabilities and your comfort and your assets available. So say if I'm a graduate and I have this mindset that I want to start a business, I don't want to do a job. So what are the few things that I should keep in mind, or few tips that a person who's venturing into business you'd like to, it could be any business, it could be a generalized tip I would say, but 4-5 key factors that one should keep in mind before venturing into entrepreneurship or startup or business. अगर ये मन बना ही लिया है कि कोई बिजनेस करना है अपना, तो सबसे सिंपल पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि मैं लेट्स से लखनऊ के इस एरिया में हूँ. दिस इज शहीद पथ एंड अराउंड. राइट. Let's say there is a gentleman, a boy who's just graduated from university and now wants to do something of his own. तो पहला तो स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, क्या मुझे यहाँ से कुछ स्टार्ट करना है. दूसरा होता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है. ओके. सो लेट्स से इफ आई एम अ केमिकल इंजीनियर
then I have an inherent skill set. So you should be thinking about starting the skill sets that you have. Let's say you were a person from content ever since. आप कब से ज़माने से मैं देख रहा हूँ आप इतना content create करते हो around stories, around storytelling and all that. So if you are creating a business around content development, that's a natural marriage, right? It's a passion. Passion and your skills both match are here. matching. Very true. तो अगर किसी ने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है और उसका पैशन गाना गाना है तो भाई देखो क्या करना है. अगर आपका मन पूरी तरह गाना गाने को है तो या तो अगर उसमें बिजनेस करना है तो बिजनेस भी कर सकते हो ना. व्हाई कांट यू टर्न एंड बिल्ड अ म्यूजिक कंपनी फॉर एग्जांपल. आई तो आपको बेसिकली अगर मैं ब्रॉड फ्रेमवर्क दूं हाउ टू डिसाइड व्हाट बिजनेस टू डू इज वन योर पैशन योर स्किल सेट्स. इन दोनों की जहां शादी हो जाए एज एन there's a intersection between your passion and between the two. So if you're passionate about art then you could be a good designer ना. तो स्किल सेट्स में क्या करना है आपने Adobe सीखना है आपने. अगर आपने वो सीख लिया then your passion and your skills match and then you can be a good designer and you can start a design agency if you are good at like you are कि घर को सजाना है अच्छे से तो you and फिर then you also acquire skills which are related to interior designing, then you can actually become a really sought after interior designer because आप दिल से काम करते हो, पैशनेट होके काम करते हो, फिर आपने स्किल्स भी वैसे ही डेवलप कर लिए. दूसरा होता है कि भाई मैं यहाँ हूँ मुझे नहीं पता पर आपको एक गैप आइडेंटिफाई किया आपने कि मैं इस एरिया में रहता हूँ और यहाँ मिठाई की शॉप नहीं है फॉर एग्जाम्पल या यहाँ पर जिम्स नहीं है यहाँ सलोन्स नहीं है एंड यहाँ की भी तो नीड है और किराए पे अगर मैं लूँगा तो यहाँ जगह भी सस्ते में मिल जाएगी और मुझे लगता है कि इसमें जाना चाहिए. पर आपका स्किल्स कहीं से भी नहीं है, ब्यूटी के बारे में आप भी नहीं जानते ब्यूटी का. तो दो तरीके हैं भाई. आपने गैप तो आइडेंटिफाई कर लिया और उसको वैलिडेट भी कर लिया कि भाई इस 3-4 किलोमीटर के दायरे में एक भी नहीं है और कोई 10,000 लोग रहते हैं. आपको देखना पड़ेगा मार्केट कितनी बड़ी है. करेक्ट. तो मैं क्या करूँगा कि मैं या उस बंदे को मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई तुम अगर पैशनेट हो और तुम्हारे को लगता है कि 10-20 लाख हैं आपके पास और इसको भले आपके पास स्किल सेट नहीं है बट एक अंदर से पैशन है कि मुझे अपने आप को ग्रूम रखना है. शौक भी तो होता है ना एक चीज़ कि मैं I keep myself well groomed and I would love for people to they should also come and get groomed in me. So you will very soon start acquiring the basic skills of running a business. और क्या है कि आजकल तो ये फ्री का जमाना मतलब ज्ञान फ्री में है. Probably in the history of mankind इतना ज्यादा ज्ञान और इतना सस्ता इतने इजीली ज्ञान कभी नहीं मिला था. मैंने शायद गुरुकुल के जमाने में कहते हैं कि फ्री होता था लेकिन वहां भी आपको गुरु दक्षिणा देनी होती थी. चलो मैं कहता हूँ कि गुरु दक्षिणा आपने कहा कि मैं अपने खेत की सब्जी दे दूंगा तो लोग वो भी एक्सेप्ट कर लेते थे आपके हैसियत. बट अल्टीमेटली आपको 3 साल 4 साल निकाल के किसी गुरुकुल में जाके रहना होगा ना. प्रॉब्ली वो आपसे 10 किलोमीटर दूर है कि 10,000 किलोमीटर दूर है. यू डोंट नो. बट टुडे तो यूट्यूब खोलो और आपने बोला हाउ टू सेट अप अ ब्यूटी पार्लर एंड यू वुड नो. सो इफ यू कैन आस्क अ क्वेश्चन गूगल विल आंसर. एंड अब तो चैट जीपीटी भी है राइट. यू शुड हैव स्मार्ट क्वेश्चंस टू आस्क एंड यू विल गेट एन आंसर. और हो सकता है कि फ्री वीडियोस मिल जाएं. अगर फ्री नहीं भी मिला तो इतने सस्ते में आजकल ट्रेनिंग मिल रही है. प्रॉब्ली एजुकेशन इज वन ऑफ द लोएस्ट लेवल्स टुडे. एंड Lowest levels you mean to say in terms of money. हाँ. या फिर 200, 400, 1,000 रुपए में आपको ठीक ठाक ट्रेनिंग कोर्सेज मिल जा रहे हैं और you can skill yourself up. And you can see what does it take. और वैलिडेशन के बड़े सिंपल से मैं एक फ्रेमवर्क दूंगा. बहुत ही सिंपल फ्रेमवर्क है. अगर वहाँ ऑलरेडी कंपटीशन अगर गैप है और आपने सिंपली कॉपी पेस्ट किया वहाँ जैसे पार्लर बना हुआ वैसा उठा के यहाँ डाल दिया क्योंकि यहाँ फिजिकल रिक्वायरमेंट है लोगों का चल के आने की और यहाँ कुछ नहीं है राइट. तो यू विल सक्सीड. ओके. सिंपल है. आपने वैलिडेट कर लिया कि 10,000 लोग रहते हैं इस एरिया में या 5,000 लोग नहीं है तो बट सिंपल है. इसको वैलिडेट करने में ज्यादा. लेकिन लेट्स से कि आपको लगता है कि अच्छा सैलून नहीं है जहां पर लेट्स से राज स्मृति जैसे लोग जाना चाहें
वो बैठ के वहाँ पर एयर कंडीशनिंग भी ठीक से नहीं है, वेटिंग एरिया भी ठीक नहीं है, ऐसी जगह राजस्मृति जैसे लोग नहीं जाएंगे। और हमारे एरिया में कोई 1000-1500 लोग हैं, मेल फीमेल बोथ, और मैं यूनिसेक्स वो खोलूंगा, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं है। या लेट्स से कि लेडीज ओनली नहीं है, सारे यूनिसेक्स हैं। तो यू हैव टू सी क्या गैप मार्केट में एंड हाउ बिग इज द मार्केट। देन अगर वहाँ ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है थोड़ा बहुत, तो आपको डिफरेंशिएटर के साथ आना पड़ेगा ना। व्हाट विल यू डू डिफरेंट फ्रॉम द करंट सलोन्स ऑलरेडी। तो कैसे आप वैलिडेट करोगे अपने आइडिया को, या उसको कैसे जज करोगे कि जो भी आप करो कैसे करो कि आप सक्सेसफुल हो। इज कॉल्ड FBC फॉर्मूला। FBC, F फॉर फास्टर, B फॉर बेटर, C फॉर चीपर। ओके, फास्टर बेटर चीपर। तो सलोन की बात करी फॉर एग्जाम्पल, या हेल्थ सेंटर की बात करी, तो it should be either faster, better. Your solution, your product, your service should be faster, better और cheaper. अब faster का मतलब इस सेंस में ये हो सकता है कि मैं 5 मिनट के डिस्टेंस पे वहां पहुंच जाऊंगा। तो जिसके लिए वो 5 मिनट का डिस्टेंस, अगर वो 1000 लोगों के लिए 5 मिनट के डिस्टेंस पे हो, और दूसरा वाला 20 मिनट या आधे घंटे के डिस्टेंस पे हो, तो ऑब्वियसली यू हैव एन एडवांटेज। नंबर 1 बेटर। तो अगर आपकी एयर कंडीशनिंग बेटर है, आपका एम्प्लॉय का ट्रेनिंग लेवल बेटर है, आपका इंटीरियर बेटर है, आपका एक्सपीरियंस बेटर है, जैसे जाते हैं राजस्मृति के लिए, एक कॉफी आ जाती है, हाउ यू मैम। अब राजस्मृति को चाहिए कि आई शुड फील लाइक अ क्वीन। और दूसरी जगह मैं जाती हूँ, पूछता भी नहीं है कोई। यहाँ आती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, आपके घर के अगल बगल, दिस इज फॉर एवरीवन, हो सकता है कि 3-4 किराने की दुकान हो, एक बहुत चलती हो, एक ना चलती हो, जबकि दोनों जगह सेम टाइप का सामान मिलता होगा। राइट। आप ध्यान दोगे तो रीजन ये हो सकता है कि बेटर वो किस तरह से है। प्रॉब्ली सर्विस में बेटर हो, प्रॉब्ली व्यवहार में बेटर हो। जैसे ही आता है कोई तो पूछता है, मैम बड़े दिनों बाद आया, कैसे हो, एक हफ्ते से देखा नहीं। So it's like personal connect because you are giving him an extra personal attention and personalized service. मैम आपने 10 चीजें गिनाई और उसने कहा अरे आटा भी तो खत्म हो गया होगा, 1 महीना हो गया, तो वोंट यू फील बेटर? आप जाना चाहोगे दूसरे के पास? आपने बैरियर क्रिएट कर दिया ना। सो you can be better in these terms also, which are not real but perceived. No, that matters. I think very rightly you said, if I have Lulu Mall here and I have a local vendor in my locality, but it's about experience. If I want a air conditioning experience, I would go there, but if I want a personalized and easy कि 2 मिनट में चीजें हो गई, ये इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। फास्टर भी है, बेटर भी है, चीपर भी है। Very true. 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, बेटर भी है, और चीपर भी है। भाई आप यहाँ जाते हैं तो वो फेशियल 1000 का है, यहाँ पर 800 का है, मैं क्यों ना जाऊँ? बिल्कुल। कभी 800 के लिए तो आदमी 30 रुपए के पेट्रोल लगा के थोड़ा 5 किलोमीटर भी चला जाएगा। Very true, very true. So one has to differentiate his business, current offering of his business by way of faster, better or cheaper. Can you offer the same service to the current clients in that area, faster, better or cheaper? That's a good formula. Very simple. Very simple, yeah. It will not take a PhD to actually, but it makes, और faster, better, cheaper को बहुत तरीके से देखा जा सकता है। Right. It will depend from one business to another. It will change. तो faster could be also कि भाई हम दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पर वेट लॉस जो है वो 5 किलो कराते हैं 3 महीने में, यहाँ 2 महीने में करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी फास्टर। दूसरा कुड बी कि भाई स्विगी जो है हमको आधे घंटे पहुंचाता है, और ब्लिंकिट जो है 10 मिनट में पहुंचा देता है। तो ये 20 मिनट के फासले में पूरा बिजनेस इधर का उधर हो गया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। सो that's broad, but then again if you get technical there are so many things yes. which you can do and get deeper into it. So that will be a full-fledged discussion of how to validate a new business idea. We'll do that in future sessions. So coming to your business journey, you identified these gaps in your area. What made you venture into business? Are you from a business family? How did it all began, the whole journey of being I was in job earlier before I started my own business. Okay. But yes, I am a Punjabi. So Sahanis are Punjabis. Some might think कि सिंधी है. So but सिंधी भी businesses में बहुत आगे होते हैं, और उनके घरों में भी business. तो पंजाबियों में तो business 70% 80% तो वैसे ही होता है अंदर. दूसरा, मुझे स्कूल के दिनों से याद है कि I always wanted to do something of my own. I wanted to be my own boss.
when, what, how will I do that, I was not clear. But with time, you know, during my job, there was a phase जब मुझे लगा कि यार जिंदगी बड़ी बोरिंग सी हो रही है. Okay, the same routine and the mundane and then life. I can't see too much of growth there. Excitement भी नहीं था. I could not experiment a lot. People generally who are entrepreneurial in their, you know, attitude and aptitude, they generally want independence. Yes. And independence of everything. Independence of time, their work culture, the way they want to work. Creativity, learning, everything. Yeah. So I found that there is a limitation out there. So I thought I'll do something of my own. Okay. That's why I decided. I hope I could answer your question. Yes. So, and what made you choose the business of Health Zone? Look, जब हमने हेल्थ जोन शुरू किया था ना, तब इतना ज्ञान नहीं था जो मैं आज दे रहा हूँ. So I was a very simple guy, but I broadly understood that there is a gap in the market. So 25 years back, I was thinking of what to do. One, I was thinking कि यार लगता था कि gyms नहीं है लखनऊ में अच्छे, या wellness centers नहीं है, diet counseling के नहीं. And then I got engaged to Simran. You know Simran, she is a nutritionist by profession. और जब लगा कि, और फिर मुझे भी अपने आप को थोड़ा वेल ग्रूम रखने का शौक था, कुछ कसरत कर लो, कुछ ठीक रहो, फिट रहो, तो लगा यार शायद ये जो एंगेजमेंट हुई है मेरी सिमरन के साथ, शायद इसलिए हुई कि let's think about a business idea around this. She also agreed, let's do something after we get married. So within 9 months of marriage we started this. I think I told you earlier about it. So 9 बनने के बाद लोगों के बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, देख नया बिजनेस पैदा हुआ. तो this is how we started. Okay. So Simran is your co-founder, she's your wife, your partner. How important it is to choose a co-founder when you're starting a business? You know, बहुत बार होता है, 3-4 people come together, they start a business. So what is your suggestion of people who are entering into partnership? Should they be a solopreneur to begin with, or they should go with partnerships and business? कहते हैं ना, hedge your bets. Yeah. तो obviously एक बिजनेस को बड़ा करना है तो सोलोप्रेन्योर होके बहुत इजी नहीं है. नॉट दैट पीपल हैव नॉट मेड बिग बिजनेसेस. मार्क जकरबर्ग कैसे ने डू एग्जांपल क्या अकेला ही है वो. बट जनरली स्पीकिंग 1-2-3 फाउंडर्स होते हैं, वो वाले जिनकी जमे आपस में पटे, वो बहुत जरूरी है. बट यू कांट चूज जस्ट एनी को फाउंडर. वो को फाउंडर आप, इट्स लाइक गेटिंग मैरिड विद ईच अदर. आई मीन इन अ लिमिटेड फॉर्म. डे इन डे आउट आप अपनी बीवी या पति के साथ रह रहे होते हो, लेकिन को फाउंडर के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. यू लिव लाइफ ऑलमोस्ट टुगेदर. एटलीस्ट हाफ ऑफ योर डेज स्पेंड विद देम. या सोने ही जाते हैं, नए नए काम शुरू करने जाओ तो सोने ही जाते हैं. तो और फिर क्या होता है, दोनों के पैशंस, विजन, सपने मैच करने चाहिए. आपका सपना कुछ और हो, मेरा सपना कुछ और हो, तो कभी वो पार्टनरशिप चलेगी नहीं. राइट. आई मीन विजन ऑल्सो. इफ आई हैव अ विजन कि मैं इसको नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी बनाऊंगे, और आप मेरे को फाउंडर बन जाओ, और आप कहो भाई आराम से बैठ, अरे बस 2 लाख रुपए महीना तक कमाएंगे, इसके ऊपर यार खर्चा भी तो करना है मेरे को, उसके बाद XYZ करना है, मैं तो जैसे कमा लूंगी, तो फॉर एग्जाम्पल तो मुझे और कुछ नहीं करना, फिर मैं उस पैसे को खर्च करने का हिसाब ढूंढूंगी. तो क्या मैच होगा हमारा? नहीं. मैं कहूँगा नहीं, ये 2 लाख वापस इन्वेस्ट करो भाई. और इस बिजनेस को बड़ा करो, आज से 5 साल बाद निकालेंगे. तो हम कभी भी एक साथ नहीं मैच करेंगे. तो दोनों के सपने मैच करने चाहिए, विजन मैच करना चाहिए. और फाइंडिंग अ को फाउंडर इन इटसेल्फ इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस. आई वुड टेल यू 95% ऑफ मोस्ट बिजनेसेस फेल, न्यू बिजनेसेस. ठीक है, अगर वो कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं. एंड 95 में से 50% चांसेस होते हैं कि वो इसलिए फेल होता है क्योंकि को फाउंडर्स में आपस में केमिस्ट्री नहीं थी. गलत मैच हो गया. तो लुक फॉर अ मैच विच इज परफेक्टली इन सिंक विद यू. और कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होने चाहिए. एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती. मेरा मार्केटिंग का अगर स्किल सेट है और आपका फाइनेंस हो, तो बहुत अच्छी मैच मेकिंग होगी, पार्टनरशिप होगी. बट मैं भी मार्केटिंग, आप भी मार्केटिंग, तो एक ही चीज में घुसे रहेंगे, बाकी चीजें नेग्लेक्ट हो जाएंगी, और दूसरा हम यहाँ भी लड़ते रहेंगे. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि 2 को फाउंडर हों तो 2 डिफरेंट स्किल सेट्स के हों, 3 को फाउंडर हों तो अलग अलग स्किल सेट होनी चाहिए. हाँ, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए. दिस इज अ
गिवन। आई टेल यू, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मत करना। एक जैसा 99% चांसेस है नहीं बनेगी। सो लॉट ऑफ टाइम्स यू विल सी कि दो आर्किटेक्ट हैं, एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही साथ मिलकर कंपनी स्टार्ट कर दी, दोनों के ज्ञान, दोनों के फंड विजन मैच करते हैं, लेकिन स्किल सेट्स एक हैं। कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, दोनों इंजीनियर से, पर ठीक है, लेकिन स्किल सेट्स डिफरेंट हो तो बहुत अच्छा मैच होता है। वेरी ट्रू। So over the years, 7 to 8, 10 years, we have seen a boom in the startup. Lot of startups are coming, and पहले तो था कि you would have your own money and थोड़ा बहुत करके आप शुरू कर लेते. With angel investing coming into the picture, and with Shark Tank and so many people ready to invest, it's become another business. That if you have money, you become an investor, and then that's again a separate business that has cropped up in recent times. Absolutely. So what is your thought on angel investing? People who are looking for angel investors, what should they keep in mind? So आप मेरे से किस point of view से पूछ रहे हो? As for people who want to become an angel investor, or the people who are looking First, to people who for are raising funds? Look, not every business would be a fundable business. Okay. Not every business can be a fundable business. Well, I'll tell you why. ये जो एंजल इन्वेस्टर्स या वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ये कोई वहाँ पर दानी नहीं है कि आपको दान दे रहे हैं पैसा। Right. आपके लो भाई बेटा तुम्हें बिजनेस करना है, मेरे से 1 करोड़ रुपया, 10 लाख रुपया, व्हाटएवर। नहीं, ये दान नहीं दे रहे हैं। Okay. इनको आगे अपना बिजनेस, अपना पैसा मल्टीप्लाई करना है। और थिंक अबाउट योरसेल्फ और एनीबडी, आप कोई भी है बंदा, वो कैसे पैसा अपना इन्वेस्ट करता है? वो हेजिंग करता है ना कि मेरा यहाँ पैसा सेफ रहेगा कि नहीं। Right. जैसे किसी के पास 1 लाख रुपया है, तो ज़्यादातर वो क्या करता है, कुछ पैसा वो लगाएगा एकदम सेफ बेट में। Yes. ठीक है, नॉर्मली एक जो दिया जाता है, एटलीस्ट लॉस ना हो, जो पैसा मैंने लगाया है वो मुझे, उसके पास स्पेयर में पैसा है कि 1 करोड़ आ गया, तो कहेगा चलो 20 लाख एफडी में कर दो यार, ये मेरे फ्यूचर के लिए हो गया और सेफ है, कम ज़्यादा। 25-30 लाख को स्टॉक मार्केट में लगा दो, 20 लाख को गोल्ड में लगा दो, अब बचा 20 लाख, चलो इसको स्टार्टअप में लगाते हैं। Right. अब स्टार्टअप में क्यों लगाएगा कोई? स्टार्टअप्स बहुत ही रिस्की बिजनेस है। वाई? सिंपल, 90% स्टार्टअप फेल होते हैं। आप ब्लू चिप कंपनी में लगाओ, कम मिलेगा, 15%, 20% मिलेगा, मिलेगा। स्टार्टअप में मिला तो मिला, नहीं तो बंद है। तो आप रिस्क क्यों लोगे? अनलेस की कम से कम 10 गुना मिले, तो 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना आपको अगले 2 साल 3 साल में अगर नहीं मिल रहा है, तो आपके बिजनेस में वो दम नहीं है। अगर तो एंजल इन्वेस्टर या वीसी फंड आपके में पैसा नहीं लगाएगा, अनलेस यू कैन ग्रो हिज बिजनेस ट्रमेंडसली, हिज मनी। अगर उसने आपके ऊपर लाख रुपए लगाया, तो अगर उसको 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का रिटर्न नहीं दोगे अगले 3 साल, तो क्यों लगाएगा? क्यों ना वो गोल्ड में लगा दे, जहाँ हर साल 10 लाख रुपए जो उसने लगाया वो 11 लाख हो जाएगा, फिर 13 लाख हो जाएगा, व्हाटएवर। बट सेफ है ना। अगर नीचे भी आया तो 9.5 लाख जाएगा, डूब नहीं जाएगा। और एफडी में करेगा तो चलो 6-7% मिलता रहेगा। स्टार्टअप्स के केस में अनलेस देयर इज अ ह्यूज दिस थिंग, सो कौन से कम बिजनेसेस रेस कर सकते हैं जिनके में ट्रमेंडस स्कोप हो ग्रोथ का। और किस में होता है? ज्यादातर न्यू टू द वर्ल्ड काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है, यूनिक एंड इनोवेटिव। तो ये 2-3 चीजें हैं कि आपने अगर एक बुटीक खोला, दैट्स नॉट अ स्टार्टअप बिजनेस, क्योंकि 50 तरह की बुटीक है। बट वो जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, इट्स ट्रेमेंडसली, इट हैज अ वेरी हाई मार्केट आउट देयर। बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है जो भी बिजनेस में। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बहुत बड़े ज़्यादा पॉपुलेशन का, और उसके लिए वो एक बड़ी नीड है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पे वैक्सीन जिसने भी निकाली उसने बहुत पैसा बनाया, या उससे रिलेटेड जिसने बिजनेस किया, क्योंकि इट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। सो टुडे आल्सो देयर आर लॉट ऑफ न्यू बिजनेसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज वेयर दिस डेफिनेशन ऑफ अ स्टार्टअप कैन बी अप्लाइड। अगर ये डेफिनेशन में आप खरे उतरते हैं, तो आप एक फंडेबल या वीसी फंडेबल या एंजल इन्वेस्टर के लायक बिजनेस हैं। So that's one criteria. So ऐसा भी हुआ होगा कि like as an These investor. are the few criteria. I can talk more about it. So as an investor, if I've invested and the startup is not able to do, so the money goes.
ऑब्वियसली। तो How do उसमें they तो recover the- इन्वेस्टर ये भी देखता है कि स्पेशली फर्स्ट स्टेज में कि इस बंदे का एक्सपीरियंस लेवल क्या है, ओके, कैन ही बिल्ड अ बिजनेस अराउंड इट। हो सकता है कि आप एक साइंटिस्ट हो और एक डिस्कवरी कर दिया आपने, बस डिस्कवरी कर दी है या पेटेंट आपके नाम पे, पर धंधा बना सकते हो कि नहीं? कि नहीं, राइट, तो हो सकता है केवल प्रोडक्ट बना सकते हो आप। तो इन्वेस्टर वुड रादर इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्ट। बट अगर आपके पास एक को फाउंडर है जो कि बहुत अच्छा है सेल्स एंड मार्केटिंग में, जिसके पास एक एक्सपीरियंस है, जिसने एक बिजनेस को कन्वर्ट किया है, देन द टू कैन टैंगो टुगेदर एंड रियली बिल्ड अ बिजनेस। बिकॉज आपके पास वो एक्सपर्टीज है, एक प्रोडक्ट बनाया तो दूसरा भी बनाओगे और तीसरा भी बनाओगे और दूसरा वाला बंदा उसी प्रोडक्ट के अराउंड बिजनेस बना देगा, एक कमर्शियली वायबल बिजनेस। सो दिस इज व्हाट इन्वेस्टर लुक्स फॉर। So, as you explained that angel investing is not meant for anyone and everyone. Your business has to be viable for investors to, invest in you. But coming to government schemes, do you have government schemes available who fund new businesses, new startups? Or, there are certain registrations and all that we should keep in mind while venturing into business? Coming to the government schemes for innovative businesses or startups, तो उसमें भी मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ब्रॉडली जितना पता है मुझे मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स अब गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिए हैं। नाउ व्हाट आर दीज इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स? तो यूनिवर्सिटीज़ को ये रोल दिया गया है। फॉर एग्जांपल इन यूपी, वी आर इन यूपी, तो सेम स्ट्रक्चर लगभग हर स्टेट में होता है। वी हैव अ नोडल बॉडी फॉर स्टार्टअप फंडिंग कॉल्ड स्टार्ट इन यूपी। स्टार्ट इन यूपी, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, वैसे स्टार्ट इन यूपी है। ओके। अब इसके अंडर में कोई 50-60 इंक्यूबेटर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। या तो वो स्टूडेंट उनके यहाँ एनरोल्ड होते हैं जिनके पास एक बिजनेस आइडिया है या उस पर काम कर रहे हैं या करने वाले हैं या आप अगर वहाँ स्टूडेंट नहीं है लेकिन आप उन्हीं के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अच्छा। आप उसकी साइट पे जाओ और उसमें एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, अगर बिजनेस के बारे में पूछेंगे वो आप भर दो। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो एक तो आपको उनके इंक्यूबेटर में बैठने की जगह मिल जाएगी। इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है? इंक्यूबेट करते हैं आपके बिजनेस आइडिया को और हेल्प करते हैं। 15-20 हज़ार रुपए के आसपास की पर मंथ की वो मिल जाएगी, कुछ लाख, 2 लाख, 5 लाख, बेसिकली हैंड होल्डिंग करते हैं। हैंड होल्डिंग करते हैं, मेंटरिंग भी होती है। वहाँ पर मेंटर्स आते हैं, अलग अलग बिजनेस डोमेन्स है, वो बताते हैं कि आप कैसे करो। दे हैव पीपल हु हेल्प यू, हैंड होल्ड यू टू बिल्ड योर बिजनेस एंड ऑल्सो गिव यू फाइनेंशियल असिस्टेंस। और एक स्टेज पे पहुंच जाता है आपका बिजनेस आइडिया तो फंडिंग या तो खुद कर देते हैं या कहीं से अरेंज करा देते हैं थ्रू वेरियस sources. So these are the ways broadly, but you can check the sites of your state. I think all the sites are more or less self, ये आप उस पे डालें तो information मिल जाती है। अभी कुछ ऐसा वाला वो नहीं चला है कि वो जब तक कि ग्रीस ना करो पाम्स और नीचे से ना पकड़ाओ तब तक। Most of these incubators and accelerators are very genuine in their approach. अगर आप में दम है, आपके अंदर है वो क्षमता, तो वो आपको फंडिंग कर देंगे। फंडिंग या इंक्यूबेशन में ले लेंगे कम से कम। इंक्यूबेशन मतलब आओ अंदर आओ, हम 15-20 हज़ार रुपये महीना देंगे, जगह देंगे बैठने की वगैरह वगैरह। ओके। और इसमें कोई मक्खन पॉलिश और सोर्स लगाने की जरूरत ज्यादा नहीं है। यूपी में तो नहीं है, मैंने अपने सामने देखा है। So were you part of any incubation? I have been helping and mentoring few incubators. So how important is mentoring? When you're starting a business, should you look for mentors from the industry or should you work with a few industry giants in the business that you're both are very important? So if you think you want to start a, let's say, beauty salon here in this area, might as well go and work. किसी और के पैसे पे सीख लो भाई, 6 महीना 1 साल. That's a good advice. Because you will, no matter what, how smart you are, you will make lot of mistakes. नहीं मालूम होता। मुझे मालूम है कितनी गलतियां करके सीखा हूं मैं। और ये गलतियां बड़ी महंगी होती हैं। समय भी खा जाती हैं आपका मोराल भी ले जाती हैं और पैसा भी जाता है। मोराल भी तो जाता है। आप गलतियां करो तो you feel rejected and you feel, हाँ, मतलब अच्छा थोड़ी लगता है फेल हो रहे हो। किसको अच्छा लगता है फेल होना? या कोई भी स्कीम चलाई नहीं चली, कोई भी काम किया नहीं चला, तो यार वो, या कुछ एक छोटा सा स्टेप उठाया, जैसे प्रमोशन के लिए उठा के आपने
कहा हम जो ये वाला पार्क है इसमें लगाएंगे और वहाँ सुबह कोई मिला नहीं, फॉर एग्जाम्पल। आपका थॉट था वहाँ मिलेगा और हम अपना प्रमोशन कर पाएंगे, अब हम बैठे हो 2 घंटा, दैट्स ऑल्सो वन काइंड ऑफ फेलियर, राइट? एनर्जी, एवरीथिंग इज वेस्टेड। सो when you have a experience, you are less likely to make mistakes. Number 2, mentors. So mentors ask for it. मैंने ये देखा है खासकर Tier 2 टाउन्स में ये हिचक रहती है आगे बढ़ के हेल्प मांगने की। Ask and you shall get. That's 1. 2, search for related topics in YouTube, in Google मिलता है। कंटेंट हर भाषा में अवेलेबल है आजकल और स्पेसिफिक मिलेगा। हाउ टू, लेट्स से ई-कॉमर्स बिजनेस है तो इतना इट कुड बी एज हाउ टू डू लॉजिस्टिक्स, हाउ टू रिड्यूस रिटर्न्स ऑन दी रिटर्न्स ऑफ दी जो आप भेज रहे हो। लेट्स से रोज 10 पीस भेजते हो और 4 पीस वापस आ जाते हैं तो कभी फायदा ना। मतलब इतना स्पेसिफिक आपको कंटेंट मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा कि वो कैसे कम हो वो भी कोई ना कोई बता रहा होगा यूट्यूब पे। तो ढूंढने वाले बनो आप। और मेंटर्स मिलेंगे, आप एक बार बोलो तो मांगने से मिलती है। चलो हर कोई नहीं करेगा लेकिन 4-5 में से एक कोई हेल्प कर देगा। राइट। सो again, business is all about sales. So over the years we've also seen that the traditional way of sales and marketing has changed or taken a back seat as well. So abhi ke time mein how relevant is social media marketing is one question I would like to ask. Digital marketing. Social marketing is just one part of digital. Entire digital marketing का जो gamut होता है, should businesses and startups totally rely on that, or should you have a mix and match of both traditional marketing and the digital marketing? How do you perceive the market? Small businesses के लिए तो all the more important है digital, because digital में कोई लाखों रुपए डालने की जरूरत नहीं है। बड़े businesses can do mass media advertising. छोटे अब कोई लेट्स से अगेन कमिंग बैक टू सलोन किसी ने खोला इस एरिया में, वो क्या टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण में ऐड दे पाएगा? 1 लाख रुपए का ऐड पड़ेगा एक ठीक ठाक साइज का। ठीक उतना ROI आएगा। और क्या दैनिक जागरण तो जानकीपुरम में भी जाता है और पास के गांव में भी जा रहा है, उसको ROI आएगा? नहीं आएगा ना। उसको तो उसका तो कैचमेंट एरिया यहाँ के 3-4-5 किलोमीटर में है। तो डिजिटल मार्केटिंग टुडे कैन बी यू कैन फोकस इट थ्रू रेजर शार्प। अब तो लेजर शार्प भी हो गया। यू कैन आइडेंटिफाई द मार्केट, यू कैन आइडेंटिफाई योर पीपल, द टारगेट एरिया। अब आपने लेट्स से कि अखबार बांटे, हैंडबिल भी बांटे, दैट्स ट्रेडिशनल वे ऑफ हैंड। अब वो अगर 1000 बंटवाए हैं तो हो सकता है कि 500 में कोई लेडी ना रहती हो, या लेडी रहती हो जो 50-60 साल से ऊपर हो जिसका स्पेंड, या लड़की हो जो 15-17 साल की हो जो जिसकी नीडी ना हो। जैसे पोर्टेंट ऐसा नहीं है कि 15 साल वाली नहीं जाती है, 65 साल वाली नहीं जाती, लेकिन बहुत कम होती हैं। तो आपका TG क्या है? प्रॉबेबली 25 से लेकर 45 तक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आपको फेसबुक ऐड देना हो या डिजिटल ऐड देना हो तो स्पेसिफिकली इस एरिया में लेडीज ऑफ दिस पर्टिकुलर एज, ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट। अब जिस लेडी को कभी मन ही ना हो कि हमें जाना नहीं जाना हमें, या उसके पास पैसा ही नहीं है कि वो 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये हर महीने खर्च करे कहीं बाहर, तो विल इट हेल्प? आपने तो पर्चा बांट दिया, आपने तो ब्लैंकेट इधर से उधर बांट दिया, उसका ROI आएगा क्या? अगर उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि उसको देखे, या देख भी लिया तो फोन करे। लेकिन डिजिटल में यू कैन डू वेरी स्पेसिफिक टारगेटिंग एंड गिव कॉल टू एक्शन, जहां से इमीडिएटली वो आपको रिस्पॉन्ड भी कर सके। ठीक है। तो डिजिटल के बिना तो स्मॉल बिजनेसेस को वैसे ही नहीं करना चाहिए, बड़े बिजनेस कैन अफोर्ड। ओके, सो डिजिटल इज हियर टू स्टे एंड यू हैव टू, दिस इज हियर टू स्टे, रादर आई वुड से द ट्रेडिशनल इज हियर नॉट टू, आई एम नॉट, it will not be staying for long. I think it will diminish. उसकी importance कम होती जाएगी। Very true. Like newspaper, we have shifted more or less to online news. तो कम हो गया है। जो impact पहले था वो अब नहीं है। You started your business with your wife. बहुत बार ये hitch होता है कि starting a business with your partner. So what are the risks involved, and what is the benefit or disadvantages of working with your spouse in your business? A lot of people want to start, a lot of people have those So when hitches. I started, I did not start with a
पूरा कैलकुलेशन की इसलिए करेंगे और इसलिए नहीं करेंगे. Okay. माई सिंपल कैलकुलेशन वाज यार ये इसने बोला है कि चलो मिलके साथ में करते हैं. शादी से पहले ही बात हो गई थी. शी इज एन एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन. आई थिंक आई कैन डू सेल्स एंड मार्केटिंग एंड अदर वर्क. शी कैन डू द कोर ऑफ द थिंग. कोर बिजनेस क्या है. तो मिल के एक जोड़ा बन जाएगा. और चांस की बात है बन गया. पर टुडे आई अंडरस्टैंड कि भाई क्या एक को फाउंडर में क्या क्या ढूंढना चाहिए. तब मुझे नहीं समझ थी. बट आई थिंक वो मुझे नेचुरली मिल गया मेरे को फाउंडर में. तो आई वाज लकी. Okay. So you've successfully established 3 businesses: Health Zone, Glamour Zone, Keros. If we talk about Keros, that's your new baby, I would say, and it's doing quite good. So what is the future? Do we see any more businesses coming your way? Would your serial entrepreneurship journey continue, or you're right now in the position of expanding Keros to the next level? So I see that, for the moment, my full concentration is on Keros. Okay. So अभी Keros में बहुत जर्नी बाकी है. अच्छा. I have no bandwidth to start another one. Okay. At the moment at least. और मुझे दिख रहा है इसको बहुत बड़ा किया जा सकता है. तो फॉर द मोमेंट तो Keros को ही ग्रो करने में लगे. How is Keros different from other superfoods that's available in the market? For example, when we started 2018, so we are a brand of super snacks and superfoods that are certified diabetic friendly and healthy for all. हिंदी में बोले तो ये डायबिटिक्स के लिए सुपर फूड्स हैं जो वो एंजॉय कर सकते हैं बिना गिल्ट और फियर ऑफ इंक्रीज ब्लड शुगर और इंक्रीज वेट. ओके. और वेट वॉचर्स के लिए भी है हमारा प्रोडक्ट. जब हमने लॉन्च किया था कोई 13-14 करोड़ डायबिटिक्स हैं हिंदुस्तान में. उनके लिए विच इज लाइक अ कंट्री. And I think India is the diabetic capital of the world. रशिया की पॉपुलेशन 13-14 करोड़ के आसपास है. उतने तो डायबिटिक है हमारे यहाँ. Oh, wow. और ये वो लोग हैं जिनके लिए कुछ बन ही नहीं रहा था इस टाइप का. उनको भी तो खाना पीना, उनको भी तो जिंदगी में थोड़े मजे लेने हैं बिना डरे. Yes. उनके लिए कोई सोच ही नहीं रहा था. तो हमने वो सोचा और उनके लिए वो निकाला. तो उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं. वी आर इंडियाज फर्स्ट ब्रांड टू कम अप विद सच एन ऑफरिंग फॉर अ डायबिटिक खाने पीने में. And is Keros present in all the states Across of the length country? and breadth of the country. We are an online D2C brand. Okay. Physically हम कोई 300-400 स्टोर्स में प्रेजेंट है, मोस्टली इन नॉर्थ इंडिया. हालांकि केरला में भी कुछ स्टोर्स में हमारा प्रोडक्ट जाता है. एंड इन 700-800 वेंडिंग मशीन्स. ई वेंडिंग मशीन्स आपने एयरपोर्ट्स में देखी होंगी, कुछ कॉर्पोरेट ऑफिसेस में देखी होंगी, मॉल्स में, जहाँ वो एक सामने विंडो लगी रहती है और छोटे छोटे स्नैक्स के पैक्स लगे रहते हैं. तो वो उसमें प्रेजेंट हैं. प्लस कोई 40+ कॉर्पोरेट ऑफिसेस में हमारा जाता है. दिस कंपनीज ऑर्डर फ्रॉम अस और उनके ऑफिस में ये अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उनके टक शॉप में उनकी कैंटीन में मिलता है हमारा. तो इस तरह से हम फिजिकली प्रेजेंट हैं. बट वी आर प्रेजेंट ऑन मोस्टली ऑनलाइन. सो वी आर 90% D2C ऑनलाइन ब्रांड. अमेजोन के अलावा कोई 42 मोर प्लेटफॉर्म्स पे हम प्रेजेंट हैं, including our own website. So कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम कहीं भी डिलीवर करते हैं. Everywhere. And I think that's a good thing to do, because if we see the vending machines, you mostly have all those sugar loaded things, chocolates and chips, जिसमें it's all about sugar. And addressing that problem, that what would a diabetic patient do? And it's not about diabetic. क्या होता है कि हमने ये पोजीशन जरूर किया डायबिटिक्स के लिए. Yeah. But the huge number of non-diabetic people, Very more true. than 50% rather, end up buying our almost 50%. Those who are into fitness and they want to डायबिटिक keep के a लिए healthy सेफ है body. तो हमारे लिए भी अच्छा है ना. Yeah, very If the true. taste they like, which we definitely are an awesome tasting snack and drinks company, तो लोग लाइक करते हैं. Like करते हैं. इसके अलावा आप इनोवेशन की बात कर रहे थे कि डिफरेंट कैसे हैं. तो हम वी वर फर्स्ट ब्रांड टू लॉन्च अ स्नैक्स ब्रांड फॉर डायबिटिक्स एंड वेट वॉचर्स विच इज सर्टिफाइड डायबिटिक फ्रेंडली. मतलब यूं ही नहीं कह रहे. नंबर 2, वी have launched innovative products like an apple cider which is added with ginger, lemon and garlic. Okay. Infused with ginger, lemon and garlic, which is science researchers say कि all these superfoods together are very good for sugar management. ठीक है. Plus we have another world's first, I'm repeating, world's first cold herbal infusers.
Okay. यानी कि आप हर्ब्स इन्फ्यूज वाटर, वो डिटॉक्स वाटर बनाते हैं ना। Yeah. अब हमारा जो ये प्रोडक्ट है सुपर हर्ब्स वाटर इन्फ्यूजर्स, आप रूम टेम्परेचर में इसको पानी में डाल डाल दीजिए। सकते, गर्म पानी की जरूरत नहीं है। हाँ, तो वो टी की तरह नहीं, दिस इज लाइक योर डेली हाइड्रेशन। Okay. घर में भी कोई आए तो ये पिलाइए। इट हैज वेरी गुड अरोमा एंड वंडरफुल टेस्ट, और हेल्थ के लिए सुपर है, फॉर क्लेंजिंग, फॉर डिटॉक्सिंग एंड अल्टीमेटली maintaining your blood sugar levels. Nice. So, one last question. How do you keep yourself so motivated and going on and on and on? What is your mantra? I think I mentioned for that? earlier, it gives me a lot of, high when I come to know that, there are more than 1 million people who love my products. Okay. I've given them joy of fear-free, Eating. guilt-free eating, enjoying with fun. तो जब उनके फीडबैक्स आते हैं कि भाई थैंक यू, ऐसा हम कुछ खाते हुए डरते थे, this gives you a lot of kick. And also the money that comes along with it, right? 2, rather 3, when you are actually building careers for so many people in your company, and then all the money that you get out of the profit that you make, and फिर एक पर्पस है हमारे बिजनेस का ना, एवरी टाइम It's helping the society. It's helping हम हेल्थ people. वाले बिजनेस में पहले से थे, Yeah. सो उनकी दुआएं हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होती है, अपार्ट फ्रॉम द मनी दैट वी मेक। Thank you so much, Sachin. It was lovely having you, and I'm sure your insights would help all the young entrepreneurs who are venturing into businesses. I am glad you gave me this chance. Thank you. Thank you.